हाँ जी, so hello and welcome everyone, class 9th. Today's topic is the back exercises of NCERT of the chapter tissues, right? Yeah, it was pending long way back, but we started up with chemistry and then physics, so it was left long behind. So now we have to hurry up and finish this tissues chapters back exercises. So kindly participate in the discussion. Ma'am is not going to do the questions. It is you guys who are going to do the questions, right? What is a tissue? The very first question is, what is a tissue? Yes, beta. A Can group anyone? of cells which come together is known as a tissue. One thing is missing in this definition. Otherwise, ठीक है, group of cells, ठीक है, they come together, but They why come they? together to do a specific function. Yes, particular function. yes. अगर हम ये function की बात नहीं बोल रहे हैं, so that means our answer is wrong and we won't fetch any marks. ठीक है, so tissue को हम कैसे define करते हैं? It may be defined as a group of cells, right, working together to perform a particular function, right? It is a step forward in the field of specialization. Yes. Okay, now I'll ask turn wise and everybody has to participate. Okay, now I'll start with the part. Part beta. What is the utility of tissues in multicellular organisms? Yes, beta. What is the utility of tissues in multicellular organisms? एक बारी दोबारा बोलो बेटा. मैम ये अभी भी नहीं सुना. मैम transmission help in transmission of messages. ओके, नो बेटा, हमें सिर्फ ये बताना है, एक जर्नल व्यू देना है आपने कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में टिश्यूज का क्या काम है, क्या फायदा है टिश्यूज को रखने का, व्हाई नॉट सेल्स? मैम show division of labor. यस 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 यस, वेरी गुड. सबसे पहले इसने हमें क्या कॉन्सेप्ट दिया? इट गेव अवे द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, राइट? आपका जो काम था वो बट गया, which in turn increase the efficiency, right? उसने क्या increase कर दी? Efficiency increase कर दी, right? Which in turn, right, increased efficiency. और कुछ पार्थ? यस बेटा. Yes, it introduced the concept of specialization, right? It paved the way the concept of specialization, right? Specialization आने से क्या हुआ? Yes, specialization आने से क्या होता है? आपकी work efficiency जो है, work output जो है, वो काफी efficiently काम करता है. It work output is increased, right? And that too very efficiently. Okay, fine. Now Prithvi, name types of simple tissue. सिंपल टिश्यू पहले तो मुझे ये बताओ, प्लांट्स में मिलते हैं, एनिमल्स में मिलते हैं? इन plants में. यस, दे आर फाउंड इन Parenchyma and Arenchyma. parenchyma, no, but I tell you parenchyma, sclerenchyma and And parenchyma, collenchyma, serenchyma. Parenchyma. बेटा वो जो होता है ना, वो आगे मॉडिफिकेशन है बेटा. मेन ये तीन है, ठीक है? parenchyma, collenchyma, then you have sclerenchyma. स्कूल में कहा था कि एरेनकाइमा भी लिखना है. लिखना है, बट वैसे होता नहीं है वो. वो तो मॉडिफिकेशन. parenchyma के टाइप है. हाँ जी, किसका टाइप है? parenchyma हाँ वही कह रही हूँ मैं, वो आगे सब modified. आप आगे उसको मॉडिफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. वो देख लेना कितने मार्क्स का है, ठीक है पार्थ? ओके, वेयर इज नाउ पृथ्वी, यू टेल, वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड? एपिकल मेरिस्टेम कहाँ मिलेगा आपको? At the top of No, the stem of the plant. kindly give the chance to the person who I am asking, right? Otherwise क्या होगा? I will not be able to get to know कि क्या उस बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं. I know, right?
आपका तो मुझे मालूम है, whenever your turn will come you have to answer, right? But अभी हम क्या करेंगे, we'll give an equal chance to everyone, right? Krishna is too late, he is always late. चैट में लिख सकते हैं? हाँ चैट में लिख दो, मेरे को एक ये हो जाता है। देखो बेटा, आप और भव्य दोनों बच्चे ऐसे हो जो मुझे फटाफट आंसर्स देते हो, लेकिन बेटा देखो हम क्लास में हूँ अलग चीज है, बट वी आर देयर इन यू नो लैपटॉप, आई एम जस्ट वॉचिंग माई सेल्फ, राइट? मुझे सब बच्चे दिख भी नहीं रहे हैं, सो इट्स जस्ट काइंड ऑफ इमेजिनेशन। तो हमें सबको साथ लेके चलना है, तो जस्ट राइट इट अप इन द चैट बॉक्स, मुझे पता चल जाएगा कि आपको आंसर आता है या नहीं। ओके, यस पृथ्वी, यू टेल मी। पहले तो ना एवरीवन काइंडली स्विच ऑन योर कैमराज, दिस इज नॉट डन, राइट? अच्छा आप फिफ्थ में पहुंच भी गए पार्थ? हाँ जी, मुझे फोर्थ क्वेश्चन बताओ पृथ्वी। यू हैव टू टेल मी बेटा, वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड? एपिकल मेरिस्टेम कहाँ मिलता है? Ma'am, at the top, but But you have to be particular with the term. It is not called top of the thing. Yes, what is the particular term? Krishna, kindly be on time beta. You are late by 17 minutes. It really means a lot, right? Okay, apical मतलब क्या होता है? Apex of the shoot and root. Okay, it is found at the apex. Apex का मतलब होता है top. ठीक है बेटा? Yes, Prithvi. At the apex of shoots and root tips. Right? Clear? Okay. Next. वैसे तो although I have got the answer, लेकिन still I would like Ashi to answer this question. Which tissue makes up the husk of coconut? Sclerenchyma tissue. Yes, it is sclerenchyma. And Parth, good to you also. Sclerenchymatous tissue. Okay, that makes up the husk of coconut. Okay, now tell me Bhavya, what are the constituents of phloem? Yes, beta. Yes, Vijay. What are the constituents of phloem? Yes, beta. no, ma'am. Okay. Anshu, the very first is given companion cells. Any other component of constituent of phloem? अच्छा मुझे ये बताओ, total constituents होते कितने हैं phloem के? Does anyone remember this? Four. 4. Yes, there are 4 constituents. One we have got to know. Krishna, do you remember? No, ma'am. Okay. Yes, Anshu. मैम phloem करके कुछ था, मुझे याद ही नहीं। कोई बात नहीं, Anshu. Phloem Yes, Anshu, you tell me beta, any other constituent you remember? Do you remember? Okay, I'll give you a hint. One is sieve tubes. तो हमारे पास दो मेन कंपोनेंट्स तो आ गए, constituent cells, sorry, companion cells and the sieve tubes. Number 3 is your Sieve cells. no, they are phloem. मैम Sieve cells है. Yes, phloem. Sieve cells है. Sieve cells बेटा उसमें Sieve cells है अब. अरे 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 रुको तो सही। मैम थर्ड वाला एक बारी फिर बताओगे मैम? हाँ जी, it is phloem parenchyma. Bhavya, what you are saying is sieve cells जो है, they are themselves there in sieve tubes only. जो उसके constituents है वो ये 4 होते हैं. Okay? Phloem fibers, phloem parenchyma, sieve tubes and companion cells. Okay? ठीक है, अब ये भूलना नहीं है किसी बच्चे ने भी. ओके पृथ्वी आप No मैम, ये तो मेरे को याद है. हाँ जी लेकिन ना हमें क्लास में जैसे कराए थे ना, तो हमारी बुक में ये 5 दिए हुए थे. नहीं सीव ट्यूब्स के अंदर ही इनसाइड ही होते हैं बेटा ट्यूब जो सेल्स होंगे, क्योंकि दे आर टिश्यूज एक्चुअली, दे आर ग्रुप ऑफ सेल्स, राइट? ठीक है, तो ये हो सकते हैं कि ट्यूब्स के साइड में उन्होंने ओब्लिक करके सीव सेल्स लिख देते हैं, लेकिन मेन इसके ये 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं. ओके क्लियर बेटा? ओके, नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी. यस पृथ्वी, कैन यू टेल मी आवर बॉडी बेटा? They are asking us our body. आपने plant body के हिसाब से yes Parth, very good. एक second, Anshu, you too had given me some answer. Okay,
अनस्पेशलाइज्ड, अनस्पेशलाइज्ड मतलब इसका आंसर दे रहे हो 7th का अंशु। भव्य मसल्स नहीं बोलेंगे बेटा, जब हमने टिश्यू की बात करनी है तो इट इज कॉल्ड मस्कुलर टिश्यू। ओके, muscular tissue is responsible for any kind of movement in our body. Yes, okay, unspecialized, yes beta। why nervous system? nervous system तो वैसे coordination के लिए होता है। okay, चलो 8th is how, what does a neuron look like? neuron कैसा दिखता है? yes, who will tell me? long in length, the longest cell. ओके फाइन, और कैसा होगा? मतलब हम इसमें क्या बता सकते हैं? न्यूरॉन इज अ वेरी लॉन्ग सेल, राइट? इट इज द लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी, राइट? और इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कौन बताएगा? कौन से 3 कंपोनेंट्स? Axon, neuron, dendrites. एक्सॉन, न्यूरॉन, Neuron, नो neuron नहीं, dendrites और उसका वो cytoplasm, नो cytoplasm कह रहा हूँ, nucleus. नो यस, एक तो ठीक है, आपने डेंड्राइट्स ठीक बताया, आई विल राइट इट डाउन। nerve ending. यस, देन इज योर सेल बॉडी। Axon, एक्सॉन, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स। ओके, ये इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, राइट? ओके, नाउ yes, who will tell me? Krishna, you will like to try give 3 features of cardiac muscles. cardiac muscles के 3 main features। पहले तो ये बताओ, do you know what is cardiac muscle? पहले मुझे ये बताना, do you have an idea about cardiac muscle? होती क्या है cardiac muscle? एक्चुअली आई डोंट नो, साइंस में मैम 9th की मैम थोड़ा ब्लैंक हूँ। ओके फाइन, ओके, आपने देखो बेटा, आप बड़े ऑनेस्टली मुझे बता रहे हो, दैट इज वेरी गुड ऑन योर पार्ट, क्योंकि यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, दे नेवर एडमिट दिस थिंग कि मैम हमें नहीं आता, वो ये कहते हैं हमें समझ नहीं आ रहा। 2 स्टेटमेंट्स में बहुत डिफरेंस है बेटा, एंड आई रियली एडमायर योर ऑनेस्टी, वेरी गुड। अब सेकंड बात जो आती है, एज अब देखो चैप्टर्स हमारे काफी हो चुके हैं, तो यू हैव टू वर्क हार्डर, आपको और बच्चों के हिसाब से वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। काइंडली रीड द चैप्टर, मार्क द क्वेश्चंस, वॉच माय वीडियोस, आपको ये देखना पड़ेगा। यस पार्थ, वेरी गुड पार्थ। पार्थ, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर कंटिन्यूअसली वर्किंग हार्ड, एंड आशी यू टू। अंशु ने भी बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई है, भव्य तो ही इज जस्ट लाइक अनुष्का, आई जस्ट कांट डिफरेंशिएट। यस, सो पृथ्वी, इवन यू टू आर गुड, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ टाइम से यू आर क्वाइट बिजी, राइट, इन अदर एक्टिविटीज, तो थोड़ा सा डेविएट हो गए हो, otherwise you are very good, right? Okay, okay, but पृथ्वी, ये जो आपने मुझे पॉइंट लिख के भेजा ना, these are the functions of cardiac muscle. I'm asking about the features, right? features मतलब जैसे पार्थ ने हमें फर्स्ट पॉइंट हमें दे दिया है, फर्स्ट पॉइंट इज they are involuntary. Krishna, listen to the बेटा, सबसे पहले कृष्णा, बच्चा बच्चा बच्चा, एक सेकेंड रुको 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 रुको, वेट। कार्डिक मसल मतलब कृष्णा, दे आर द मसल्स विच आर देयर इन आवर हार्ट, दिल की जो मसल्स होती हैं। ओके, कार्डिक मसल्स का मतलब समझ में आ गया आपको? दे आर द हार्ट मसल। अब पहली चीज क्या है, क्या कभी ऐसा होता है यार आज ना ऐसा करते हैं, दिल को रेस्ट दे देते हैं, छुट्टी दे देते हैं आज उसको, तो कहते हैं आराम से बैठ जा, ऐसा कभी हुआ है? नहीं ना, हमेशा ही होता है। नहीं यार, दिल को कैसे रोक सकते हो तुम? अपनी मर्जी से नहीं रोक सकते। मैम दिल तो करता है मैम, मर जाएंगे तो अरे हार्ट रेस्ट ले लेगा। दिल नहीं सकता मैम, मेरे को लगा आप कह रहे हो दिल करता है। नहीं नहीं नहीं, हम हार्ट को कभी भी छुट्टी नहीं दे सकते, राइट? इट ऑलवेज कीप्स ऑन यस वर्किंग, मैम। है ना? तो हमारे हैंड में नहीं है, जो चीज हमारे हाथ में नहीं होती हम उसे बोलते हैं इनवॉलंटरी, राइट? तो ये कौन सी मसल्स का बना होता है? दे आर द मसल्स विच आर इनवॉलंटरी इन नेचर, राइट? नेक्स्ट पॉइंट बताओ भाई, कैसी होती हैं ये? दे आर अ मिक्सचर ऑफ स्मूथ एंड स्केलेटल मसल And unsaturated muscle fiber. cylindrical and branch. yes, very good, it is cylindrical, branched and कितने न्यूक्लिएट होते हैं? यूनिक ही ज्यादा होते हैं, इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, ज्यादा होता है? yes, cylindrical,
Very good. Then it is branched and uninucleate. Uninucleate का मतलब होता है सिंगल न्यूक्लियस होता है इसके पास. Next बेटा. Yes बेटा जी. Next. अरे ये क्या हो गया? हाँ जी. Yes. Comprises both features of smooth and skeletal muscles, right? In between होता था ना उसका कुछ features उसके, right? Smooth and yes skeletal. क्या ये थकता है कभी? Yes Prithvi. Does our cardiac muscles get fatigued? Yes, ma'am. No, they can't get fatigued बेटा. They don't get fatigued. अगर वो थक जाएंगे तो they will stop. वो काम नहीं कर पाएंगे फिर. ठीक है? तो इसको थोड़ा सा हमने क्योंकि मैम फिर हार्ट अटैक क्यों आता है? हार्ट अटैक इस वजह से नहीं आता कि आपके मसल्स जो हैं दे आर टायर्ड. नो, हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ द ब्लॉक्ड ब्लड सप्लाई. पंपिंग नहीं हो पा रही है, उसको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है. आपके ब्लड वेसल्स जो है उनमें कंस्ट्रिक्शंस आ गई हैं बिकॉज ऑफ द फैट, क्योंकि वो डिपॉजिट होता रहता है आपके बॉडी के अंदर. अगर हम प्रॉपर्ली एक्सरसाइज नहीं करते, वी गो फॉर सिटिंग, हम सारे टाइम बैठे रहते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, क्योंकि बिकॉज वी आर एनिमल्स. हमारा जो एनिमल्स का एक मेन ड्यूटी होती है वो है वी हैव टू मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड एवरीथिंग, राइट? लेकिन अब ह्यूमंस हैं, हमने डेवलपमेंट ही बहुत की है, लेकिन वो डेवलपमेंट जो है इट इज एट द कॉस्ट ऑफ आवर हेल्थ. So we should avoid sitting for long hours. I know कि अभी online classes चल रही हैं, everyone is sitting, even teachers are sitting, but make sure कि आप अपनी physical activity के साथ compromise मत करो. कुछ नहीं है, घर में ही बाहर अंदर बाहर चक्कर लगाते रहो, so that it becomes a little bit better. Okay, who can tell me the function of areolar tissue? Everyone will keep quiet. I want to ask Anshu. May I tell? सिर्फ एक मौका दो. Can I tell? Chat box. हाँ, चैट बॉक्स में आप एवरीबडी कैन आंसर, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन आई वांट टू लिसन फ्रॉम अंशु. अंशु बेटा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यू? पहले तो मुझे बता एरियोलर टिश्यू क्या था. इट वाज अ काइंड ऑफ यस, कौन सा टिश्यू था ये? डू यू रिमेम्बर और नॉट? यस भव्य, यू टेल. इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. मैम मैं तो चैट बॉक्स में लिख रहा था इतनी देर से. अच्छा, यस, इट इज गुड. यस, ठीक है. तो एरियोलर टिश्यू जो है ना बेटा, इट इज अ टाइप ऑफ या इट इज अ काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू है. कृष्णा, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है जो दो चीजों को आपस में जोड़े. कनेक्टिव, राइट? कनेक्टिव का Yes, ma'am. ओके. तो एरियोलर टिश्यू क्या करता है? हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है ना, अब आप देखो हमारे एब्डोमेन में, एब्डोमेन जो होता है पेट वाला हिस्सा, राइट? वहां पे कितने सारे ऑर्गन्स हैं? ओके बेटा, दे डोंट ये पार्थ ये न्यूट्रिएंट्स नहीं अब्सॉर्ब करते, ऑब्टेन नहीं करते. दे हेल्प इन फिलिंग अप द स्पेस. अब आप देखो जो हमारा एब्डोमेन होता है, जैसे उसमें स्टमक भी है, पेनक्रियाज भी है, लिवर भी है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, इतना कुछ चीजें हैं. अगर सपोज वो बाकी सारी जगह खाली होगी तो वो हिलते नहीं रहेंगे. सो इन ऑर्डर टू कंपैक्ट द फिलिंग स्पेस, हम इस एरियोलर टिश्यू के साथ भर देते हैं. दे आर बेसिकली द पैकिंग टिश्यू. ठीक है, हम पैकेजिंग टिश्यू कर लेते हैं. नो बच्चे, स्किन और मसल के बीच में नहीं मिलता. दे आर फाउंड लाइक अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स. ठीक है, अंडरलाइंग टिश्यूज. जो भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं ना, उनके अंदर की जो स्पेस खाली है, जैसे आपने देखा होगा आपके पास अगर इनकेस कोई गिफ्ट आ रहा है, जैसे ग्लास आइटम आता है कोई, तो उसके आसपास वो भूसा सा भर के देते हैं पेपर का, राइट? पेपर के छोटे छोटे पीसेस होते हैं, राइट? फिलिंग्स होती हैं वो. तो वो क्यों देते हैं? सो दैट आपका जो वो वेसल है वो प्रॉपर्ली एक जगह पे रहे और उसके ऊपर कोई डैमेज ना आए. सिमिलरली हमारे जो ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, दे आर आल्सो वेरी डेलिकेट. तो ये क्या करता है? इट फिल्स ऑल द स्पेस, राइट? फिल्स space around the internal organs for their support, right? Around internal organs in order to support them.
Okay. Okay. Now who will define the term tissue? Although we have done this question, but still. मैं अभी तो किया था. अब तभी तो क्वेश्चन तो बेटा ऐसे ही होते हैं, रिपीट ही होते हैं. तो क्या हो गया अभी किया है तो? A group of cells that are similar in structure and work together to a particular function. Yes. ये कृष्णा बोल रहा था. आवाज ये किसकी थी बेटा? आशी की. आशी की. अब लगी नहीं रही थी आशी की आवाज. ओके. यस अंशु ये ठीक है, लेकिन हम इसमें क्या लिखेंगे? ग्रुप ऑफ सेल्स लिखेंगे, नॉट मटेरियल. ठीक है. सो इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स coming together for a special purpose, yeah, special function, special particular function, right? कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? Yes, Prithvi, any example of tissue? Yes, बेटा जी. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. Any example of tissue? अभी ठीक है? Yes. मैम टिश्यू का नाम बताओ. कोई भी एग्जाम्पल? एरियोलर टिश्यू. Yes, very clever. ठीक है. Okay, next. How many types of elements together make up the xylem tissue? How many? Tracheids, xylem fibers, xylem parenchyma और vessels. Very good, very good. आप Parth, Bhavya and Ashi. Good. Okay, so let me write down. And everyone, please repeat this thing. There are 4 types of elements that make up xylem. Okay, 4 types of xylem है, elements होते हैं बेटा. Number 1 is, yes बेटा. Tracheids. Yes, they are the tracheids. Number 2 is xylem vessels. Vessels. Yes. Xylem fiber and vessel. Xylem parenchyma. Yes. तो हमारा next क्या है? Xylem fibers and xylem parenchyma. Yes. Clear, beta? Okay. Now tell me, how are simple tissues different from complex tissues? Simple tissue से जो है वो complex tissue से कैसे different होते हैं? एक simple सा कोई difference बताना है मुझे. बहुत ज़्यादा आपने Many simple tissue are made up of one type of cell which coordinate to perform a common function, and complex tissue are made up of more than one type of cell. Very good, Ashi. Very good. Simple tissues are made up of only one type of cell. ठीक है, इसमें एक ही टाइप के सेल आएंगे. One type of cells. क्या आप मुझे एग्जाम्पल दे सकते हो इसका? और कॉम्प्लेक्स में आ जाता है मोर देन वन. Parenchyma. किसका है वो एग्जाम्पल? And simple. सिंपल. ठीक है. और कॉम्प्लेक्स में क्या आ जाएगा? Xylem. जाइलम. वेरी गुड. या phloem. बिल्कुल ठीक है. वेरी गुड. तो ये आपके 2 पॉइंट्स बन गए, राइट? ओके. नाउ अब आपने मुझे बताना है ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बीच में डिफरेंस बताना है. आई एम गिविंग यू 2. सेल वॉल के हाँ, जस्ट आपने सिर्फ सेल वॉल के हिसाब से बताना है इनका. ठीक है. आई एम वेटिंग फॉर द आंसर एंड यू हैव टू टेल मी. 4.5. पेरेन्काइमा. ठीक है. देन यू हैव कोलेन्काइमा एंड द लास्ट इज स्क्लेरेन्काइमा. इनकी सेल वॉल कैसी होती है उनके बेस पे आपने डिफरेंस बताना है. ठीक है. ये हमारे टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं. तो पेरेन्काइमा में कैसी सेल वॉल? Parenchyma की होती कैसे?
Just write it down. Right, so we did differences between parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Then we discussed the 15th question, and 16th question I'm giving you guys as homework. Okay, this question is to be done as homework. Kindly refer to the book, refer to my notes. You will get the 3 types of muscle fibers. Okay. Now the next question is, what is the specific function of cardiac muscle? Yes, Krishna. Yes, ma'am. What is the specific function of cardiac muscle? Cardiac muscle का क्या function होता है? Ma'am, function of cardiac muscle. Ma'am, it is a muscle of heart. It has involuntary muscles in cylindrical shape and branched, which is unicell, which is uni. Nucleate. मैम इसका एक और फीचर है कि comprises both features of smooth and skeleton. Function होता है बेटा, it helps to contract and relax the heart. ठीक है, तो जो cardiac muscle है क्या करता है? It helps to contract, helps in contraction. Helps in contraction of heart. Yes, contraction and relaxation of heart. मैं आपने कल एक होमवर्क भी दिया था वो कौन सा बेटा? कल नहीं परसों क्या चीज बेटा बताओ एक बारी. मैं एक क्वेश्चन दिया था कि केमिकल लिखने हैं उसके, या क्विकलाइम था, पोटेशियम सल्फेट. अच्छा, चलो अभी देखती हूँ क्या दिया था. अच्छा, ये जो डिफरेंशिएट है बेटा, ये भी आपने होमवर्क करना है. 16th और 18th क्वेश्चन बिल्कुल ऑल टुगेदर सेम है. 16th में आपको डायग्राम बनाना है, इसमें आपको टैबुलर फॉर्म में लिखना है. ओके, देन लेबल डायग्राम. और ये मेरे पास व्हाट्सएप आना चाहिए. डोंट ईमेल मी, इसको सिर्फ आपने व्हाट्सएप करना है मेरे को. और जिस बच्चे ने नहीं किया ना उसकी खैर नहीं फिर. ठीक है, चलो. Now we will straight away come to question number 20. This one is quite interesting. Let's see. Okay, tissue that forms the inner lining of our mouth. कौन सा टिश्यू होता है वो? Inner lining of our mouth क्या होता है? Squamous epithelium. हाँ जी, muscular? No. It is epithelium. No, ma'am. Squamous. अच्छा, squamous. Okay, sorry, मुझे सुना ठीक नहीं था. It is squamous epithelium. Very good. Squamous epithelium. Okay. Tissue that connects muscle to bone. Parth. Muscle to bone कौन सा? लिगामेंट. No. Muscle to bone. मसल टू बोन. Tendon, Oh. शायद. Tendon. It is tendon. Okay. Tissue that transports food in plants. Phloem, xylem. Phloem. अरे be confident बेटा, सारा कुछ नहीं बोलना हमने. Okay, good. It is phloem. Okay. Stores fat. Tissue that stores fat in our body. It is no, it's not areola. It is tissue. Okay. Okay. Connective tissue with a fluid matrix. Connective tissue. Yes, बेटा. Yes. It is जिसमें blood और lymph आ जाता है. ठीक है? Vascular tissue. Okay. Very good. It is nervous tissue. ये कौन था? Right. Okay. Next is identify type of tissue. Ma'am, You have to just tell me the type of present in skin. कौन सा tissue? टिश्यू कैसा था? मतलब टाइप ऑफ टिश्यू कौन सा प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट होता है स्क्वैमस. एपिथेलियम. ठीक है, हाँ वैसे स्क्वैमस है. वी विल राइट. ओके. नेक्स्ट, इसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? तो रॉबर्ट कौन? बोन या फिर यस लाइन Cuboidal epithelium. वेरी गुड. Yes, epithelium. Vascular bundle है.
Vascular, Xylem. yes, yes. So it is permanent tissue, right? It's permanent tissue. Now tell me the region tissue is present. Parenchyma tissue कहाँ present होता है? आप बता सकते हैं? मैम मैंने ये चैप्टर याद नहीं किया अभी. Who else can tell me? Part Ma'am, in leaves. yes, is present in early. होता कैसे है ये? ये आपके ऑर्गन्स के कॉर्टेक्स में मिलता है और लीव्स में. ठीक है. ट्रांसफर Ma'am, leaves and flowers. ट्रांसफर होता है. No. वैसे इसके जो फाइबर्स होंगे क्या मिलेंगे, फ्लोएम में भी मिलेंगे. बेसिकली क्या है, पेरेंटाइल टाइप्स का होता है. इट इज देयर, इट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू. ठीक है. कॉम्प्लेक्स में चला जाता है तो ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन के काम है, जैसे कि जाइलम में भी है, जाइलम पेरेन्काइमा, फिर हमारे पास फ्लोएम पेरेन्काइमा है, ये उसमें जाके उनके साथ मिल जाता है. लेकिन क्या होगा, तब नहीं करेगा ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है. कॉर्टेक्स ऑफ रूट्स एंड बेसल ऑफ लीव्स में. ठीक है. नाउ व्हाट इज द रोल? यस भव्य. व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस? Yes, who will tell me? The epidermis is a protective, right? इसका main role क्या है? Main क्या है? Protective. इसीलिए क्या करता है? Protection, right? ठीक है जी. और कुछ करता है ये? Ma'am, protection against water loss is. उसके अलावा हमारे को हेल्प करता है, secretion में हेल्प करता है, exchange में भी हेल्प करता है. तो ये प्रोटेक्शन के साथ किसी चीजों में हेल्प करता है. Yes, prevent entry of any pathogen inside body. ठीक है. Just exchange. I not properly short. Translation. Right. Okay. Act as a protective tissue. Yes. Cork जो है वो protective tissue काम करता है. कैसा होता है नेचर में? Is it dead? Is it living? एक तो डेड सेल होता है, राइट? कॉर्क सेल्स हमारे टिश्यूज को प्रोटेक्ट करता है. तो हमें बताना है वो कैसे करते हैं इसको एज प्रोटेक्ट करेंगे, राइट? तो क्या जो सेल्स होते हैं नेचर, राइट? अब इसका है ना, they don't have any intercellular space, no intercellular space. There is no space. कोई भी there is no space at all, right? No fungi attack. इनकी जो सेल वॉल होती है that is coated with क्या चीज होता है? ऐसी सब्सटेंस बताया था मैंने सुबह, कोटेड होती है. कोटेड सेल वॉल. इसे क्या बन जाता है बेटा? तो एकदम से कोई जा सकती है, राइट? Okay, so with this exercises tissues